The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here. You cannot get through a single day without having an impact on the world around you. What you do makes a difference, and you have to decide what kind of a difference you want to make. Good morning to one and all present here. I, Sufia Mirza, student of BGMC first year, welcome you all to the program on the World Nature Conservation Day, organized by SPA, the Student Council of DME Media School. Today, we have gathered here to celebrate and acknowledge that a healthy environment is a foundation for a stable and a healthy society. To ensure the well being of the present and the future generations, we must act as responsible human beings and participate in protecting and conserving our nature. As we move further, I would like to invite Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School, to share his thoughts on this day. Thank you, Sophia. So this day is important for the reason that we all owe to the nature. Whatever resources have been made available by the nature for us all. Because of that, the life is there, and because of that, our existence is there. So we all must acknowledge that preservation of the natural resources is our prime responsibility. And if we are not doing that, the impact of that is very, very open to see the kind of changes which are happening in the environment of the entire world. And the kind of natural calamities that we all are facing, that's an indication that we are not handling our natural resources judiciously, wisely. So any such kind of event is just a reminder to us all that we must all respect the nature. We must all do such kind of things which are ultimately leading to the preservation of the natural resources. So that is all what I want to say today. Thank you. Thank you, sir, for those words of wisdom. Now, I would like to invite Dr. Ravikant Swami, Director DME, to address the gathering. So it's an important day because nature is something which is the most exploited and the most ignored. Everyone wants to use the nature, but no one wants to conserve that. And then there's a ever-going controversy between the developed and the developing nations, because the developed nations, they themselves means they exploit the nature, and then they teach the developing nations not to exploit the nature. So that kind of controversy is always there. I'm sure the audience would be they'll gain a lot by listening to Vedant ji, the speaker for today's program. Thank you. Thank you, sir. A guardian of the nature, Sundarlal Bahuguna. He fought for the preservation of the forest in the Himalayas, first as the leader of the Chipko movement in 1970s, and later initiated the anti-Tehri Dam movement in 1980s to early 2004. Sundarlal Bahuguna will be remembered as a man of the earth who strove all his life to save it. Now, let's have a look at the life of Sundarlal Bahuguna in the form of a navy. Voice over by Shreya Jha, video edited by Rishabh Patel. Ecology is permanent economy, remembered as the man of earth who strove all his life to save it.
born on January 9, 1927, in a village Maroda near Tehri, Uttarakhand, grew up in the Himalayas, who adhered to the Gandhian principles. A non-political man who lived a simple life in an ashram, advocated for self-sufficiency rather than too much international trade. Materialism was something he detested. The man was none other than Sundarlal Bahuguna. Mr. Bahuguna was encouraged to become an activist in remote rural areas by his wife Vimla Bahuguna, and later initiated the Chipko movement. He was known around the world for teaching Indians to hug trees in order to conserve the environment. The Chipko movement started on March 26, 1974 in Uttarakhand from spontaneous action by villagers to save trees from being cut down by forest contractors. Bahuguna was indefatigable in his efforts to amplify the Chipko movement. The movement received 1987 Right Livelihood Award, also referred to as the Alternative Nobel Prize, for its dedication to the conservation, restoration, and ecologically sound use of India's natural resources. He fought for the preservation of forests in the Himalayas, first as the member of Chipko movement and later initiated the anti-Tehri Dam movement from the 1980s to early 2004. The success of the Chipko movement was not only to save the forest around the villages where the movement started, but to make the whole country aware that there were lots of problems with the prevailing development model. He didn't just serve the nature but also fought against untouchability and later started organizing hill women in his anti-liquor drive from 1965 to 1970. In 1987, Mr. Bahuguna refused to accept the Padma Shri over the government's refusal to cancel the Tehri Dam project despite his protests. The great man left us on May 21, 2021. He may have left us, but the legacy remains. Together, let's join our hands for the good cause and pledge to serve Mother Nature. Moving on, today's special guest is Mr. Vedant Goyal. He is a socially responsible entrepreneur whose mission is to work towards sustainable earth while fulfilling his commercial responsibilities. An ardent devotee of Sai Baba, Vedant Goyal co-founded a social initiative under the name INeedSai.org. His mission has been to have sustainable development while preserving the ecology of our Mother Earth. He has been fighting for a cause to conserve water resources so that human beings and other life species could enjoy the resources of our nature. He has been actively promoting to educate and change the behavior of school children to save water so that they can engrave this within themselves as a habit and drive a mass social change within their families and future generations. His teachings mantra has been, water is free, but you do not own it. Use water wisely. Vedant Goyal has been a Limca Book of Records winner for 3 times for his water conservation and education initiatives. His initiatives has helped school children over 54 schools to understand the importance of water conservation and ways to save water. Over 2 lakh school children have benefited from his initiatives, saving over 50,000 liters of drinking water every single day. Vedant Goyal is an entrepreneur working in steel industry. He has been on the board of directors Alpha Logic Taxis Limited, which was the first startup list on the BSE startup platform. Now, I would like to invite Mr. Vedant Goyal to address the gathering. It will be followed by the question answer session moderated by Krishna Pandey, Assistant Professor, DME Media School. So DME, are you excited for the conversation or like chalo ye to this is just an initiative to aa gaye hum log, just wanted to know the views of students. You can write on chat box, so I will get to know like everyone is present or like when I was student, so हम लोग भी जनरली ये करते थे कि घर पर आ गए और हमारा कंप्यूटर चालू है, लैपटॉप चालू और हम लोग हमारी मस्ती में. Okay, so I think Mahima Gupta, Naitik, Anjali, Yogesh, thank you so much for the responses. I really want to thank you, DME. I want to thank Ambri Saxena
थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। लाइक अगर अगर आप नहीं होते तो आई थिंक हम दोनों अभी लैपटॉप के सामने नहीं दिखते। आई वुड लाइक टू थैंक कृष्णा पांडे मैडम, थैंक यू सो मच फॉर like coordinating from yesterday. I really appreciate your efforts, madam. I really want to thank Ravikant Swami sir. Like I think you are one of the very aggressive director of DME, and I have read many things on the internet. I was searching for DME, what exactly you do, and I see like you are very aggressive. So inspiration to all the students. So कैसी चल रही है जिंदगी? लाइक जब when I got to know about the DME, मेरे को मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए कि when I was a student and I used to go and visit workshop. So I hope everyone is very excited, and the main intention for me is to give some value. Like अगर हम लोगों को एक दूसरे से वैल्यू नहीं मिलेगा, so that doesn't make any sense. And also I would like to congratulate everyone for World Nature Conservation Day. So आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम लोग थोड़ी सी अच्छे से समझेंगे कि हम लोग अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। डेफिनेटली इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, बट अर्बनाइजेशन में जा रहे हैं, डिजिटाइजेशन में जा रहे हैं, तो सही में हम लोग सही रास्ते में है या नहीं है। सो आई हैव सम केस स्टडी विथ मी. So there is a case study based in लाइटन, कनाडा में एक विलेज है लाइटन. उसमें हीट वेव के कारण आज के टाइम पे 50 डिग्री का क्लाइमेट हो चुका है. ठीक है, जो मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे से समझना. 50 डिग्री का आज क्लाइमेट है उधर. राजस्थान में जो कंडीशन होती है वो कनाडा जैसे शहर में हो रही है. सेकेंड, इफ यू रियली सी इन इंडिया, आज हम लोग जो भारत में रहते हैं, वो भारत में जनरली जो मॉनसून का सीजन है वो स्टार्ट होता है जून में. बट इफ यू रियली सी, वो जो मॉनसून है वो आज के टाइम पे हमारे अगस्त या सितंबर में चालू हो रहा है. इफ यू रियली सी, इफ यू कैन आस्क योर पेरेंट्स, आज से 10 साल पहले हमारे इसमें लाइक वी वाज एक्साइटेड कि आज ये जून में हमारा मॉनसून चालू होएगा. बट आज के टाइम पे ये कंडीशन है कि हम लोग वेट करते हैं कि मॉनसून कब आएगा. ये सारी चीजें हो क्यों रही है? लाइक वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. डेफिनेटली इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री. इंडिया में अर्बनाइजेशन काफी अच्छा हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी अच्छा हो रहा है. आने वाले इंडिया में 50 साल इतना अच्छा फ्यूचर है, जो अपनी जीडीपी आज के टाइम पे जो है वो इंडिया में बहुत अच्छी रहेगी. और ये आप समझ लीजिए कि आज जो चाइना का कंडीशन है या आज जो यूएस का कंडीशन है, उससे हम लोग काफी बेहतर है. ठीक है, बट हम लोगों को कोई चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम लोगों का सही में ध्यान हमारे मदर अर्थ पे भी है क्या. अगर आपने पिछले हफ्ते में कोई न्यूज पढ़ी होगी, तो आपने आइडेंटिफाई किया होगा ओला इलेक्ट्रिक, ओला कैब. ओला इज कमिंग अप विद एन इलेक्ट्रिक व्हीकल. कितने लोगों ने सुना है ओला के बारे में? ओला इज कमिंग अप विद इलेक्ट्रिक व्हीकल. If you can answer, like I am waiting for the answers. Okay, Suchi, Mayank, okay, Muskan, got that? So heard about it. Suchi, got that? So if you really see, Ola is coming up with electric vehicle. आपने सोचा है ओला को इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने की क्या जरूरत पड़ी? आज जब हमारे पास इतने सारे पेट्रोल डीजल के व्हीकल है, उसके बाद भी हम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आना है. डू यू नो दैट 2030 से पहले जर्मनी ने अनाउंस किया है कि जितने भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है फॉर पेट्रोल एंड डीजल, वो सब के सब वो बंद कर देंगे. एंड मर्सिडीज बेंज will only have, I am talking about Mercedes-Benz will only have electric vehicle before 2030 in Germany. ठीक है, so I want to share some of the facts with you. Like recently we had India और पूरे वर्ल्ड ने काफी खराब समय देखा है कोरोना कोविड 2019. If you really see, हम लोगों ने हमारे मदर अर्थ को there is no value for our mother earth. Like we don't respect our mother earth. This is reality, this is truth. हम लोग जब घर पे रहते हैं तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम लोग हमारे घर की साफ सफाई करें, because we own that house.
but why don't we own our mother earth? Like if you really see, आज हम लोगों को हमारे मदर अर्थ ने ही सारी कुछ दी है। आप आपकी इच्छा से तो ये धरती पे नहीं है, आप लोगों को कोई चीज लेकर आई होगी। इफ यू रियली सी, फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम कॉलेज to job and businessman, everything has given by society, बट आज हम लोग कोई चीज नहीं दे पा रहे। आज हम लोगों ने सोसाइटी में क्या दिया है? हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज सीखी है, सोसाइटी से लेना। लाइक टीचर्स है, टीचर्स आर ओनली गिविंग टू द स्टूडेंट्स, बट आर वी रियली गिविंग एनीथिंग टू द सोसाइटी? अगर हम लोग सिर्फ वन वे, लाइक हम लोग है ना, एज अ इंडियन है ना, हम लोग बहुत कमर्शियल हो चुके हैं कि एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना। हाँ, आई होप आई एम लाइक आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत सारे लोग मेरे से अग्री करेंगे, बहुत सारे लोग मेरे से अग्री नहीं करेंगे, बट लाइक अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलूंगा और अगर मैं सिर्फ आती मीठी मीठी बातें करूंगा तो दैट विल नॉट मेक अ चेंज। आई एम हियर टू मेक अ चेंज इन आवर सोसाइटी। आई एम हियर टू मेक अ ग्रोथ। एक मदर अर्थ ने हमको जो जो चीज दी है, हमारी खुद की डेवलपमेंट होना जरूरी है। हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, ठीक है, वी आर ओनली ब्लेमिंग आवर गवर्नमेंट, बट आर वी रियली डूइंग एनीथिंग? लाइक आर वी फॉलोइंग आवर रोड पे जब हम लोग जाते हैं तो क्या क्या हम लोग मेक श्योर करते हैं कि गाड़ी जो चल रही है, सिग्नल पे रुका है तो हम लोगों को गाड़ी बंद करनी चाहिए, जिससे हमारा पॉल्यूशन कम होएगा। अगर हम लोग सिग्नल पे खड़े हैं तो क्या हम लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि हम लोगों को हॉर्न नहीं बजाना है, क्योंकि हमारा साउंड पोल्यूशन बढ़ेगा? कभी हम लोगों ने ये सारी चीजों पे डिस्कशन ही नहीं किया है। और इसमें लाइक जो जो हमारा वाटर इनिशिएटिव है, लाइक आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू ऑल दैट आवर वाटर इनिशिएटिव इज एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो हम लोग इनिशिएटिव कर रहे हैं, दिस इनिशिएटिव विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ईच एंड एवरी स्कूल इन गवर्नमेंट इन पैन इंडिया बेसिस। एंड लाइक वी आर ऑन अ बोर्ड फॉर जल मिनिस्टर फॉर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स, जिसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जितना भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं, जो भी चीज हम लोग अभी करने जा रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग सेव करें। अभी मैं कोई ना कोई पॉइंट पे सेविंग सॉल्यूशंस पे आता हूँ। लाइक ये तो सारी मैंने प्रॉब्लम पे बात करी, सॉल्यूशन पे मेरे को ये बोलना चलेगा, व्हाई डोंट वी टेक as a DME or as a student or as a group, as a spark, कि we will make sure कि हम लोग कोई as a social responsibility, like जो कि कंपनी CSR, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो करते हैं, हम लोग ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं ले सकते, या एक इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग ले सकते हैं क्या? लाइक हम लोगों की सोसाइटी में हम लोगों ने एक इम्प्लीमेंटेशन किया है कि हमारी सोसाइटी से अराउंड 5 किलोमीटर दूर एक जंगल है, ठीक है ना, और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उसमें एक पेड़ लगाया जाए, और जब भी जो भी लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं, वो वाले वॉकिंग पे जाके हम लोग उनको डेली के डेली पानी डालें। या तो फिर अगर हम लोग डेली नहीं डाल सकते हैं तो हम लोग हफ्ते में एक बार उधर जाए और वो वाले पेड़ की हम लोग सेवा करें। इससे हम लोगों को ही एडवांटेज होएगा। So why don't we take an initiative? Like we have taken initiative, जिसमें we go to school, we educate all the children, we go to society, we educate all the maids, and we educate all the house owners कि जिसमें how we can save our water. Like हमारे देश में पानी फ्री है तो हम लोग कैसे भी करते हैं, कैसे भी यूज करते हैं, बट इफ यू रियली सी इन सऊदी, in Dubai, like you need to pay for money, you need to pay for water, ठीक है। और बिफोर 2040 के पहले हमारी भी देश की ऐसी कंडीशन हो जाएगी जिसमें जो आज हम लोग पेट्रोल के लिए पैसे दे रहे हैं, हम लोगों को पानी के लिए पैसे देना पड़ जाएगा। So what I want to say, this is a responsibility to make sure that we take some initiative, on an individual level. Like blame चलते रहेगा कि आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया, but blame से we will not achieve anything. So what I want to say है कि हम लोग अगर initiative नहीं लेंगे, like we can take initiative or water initiative, जिसमें हम लोग जाके we will educate. You can educate your friends about saving water. You can educate about tree. हम लोग कैसे क्या ट्री प्लांटेशन की हम लोग ड्राइव कर सकते हैं. You can educate about pollution, कि हम लोग आज के टाइम पे पोल्यूशन इतना हो गया कि देयर इज नो लिमिटेशन. लाइक हम लोग सिर्फ हमारे बारे में सोचते हैं. कभी आपने एनिमल्स के बारे में सोचा है?
लाइक when you go to जंगल, लाइक आज के टाइम पे जितने भी नेशनल पार्क है, you need to read some news about नेशनल पार्क में कंडीशन इज वेरी बैड. So we individually need to take some of the initiative. If we are not going to take initiative, ये जनरेशन तो ठीक है, ये जनरेशन में कोई परेशानी नहीं है, बट जो हमारा आने वाला जनरेशन है, जो आने वाला फ्यूचर है, वो वाले फ्यूचर में हम लोगों को परेशानी हो सकती है. और वो जो परेशानी होगी, लाइक वी कैन नॉट चेंज. लाइक वी शुड थैंकफुल जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जिन लोगों ने सारी की सारी इनिशिएटिव्स लिए हैं आज तक के, हम लोगों को उनको धन्यवाद बोलना चाहिए, बिकॉज उनके वजह से ही आज की हमारी जनरेशन में हम लोग जी पा रहे हैं. नहीं तो कोविड-19 जैसे एक और एक बार अगर कोई थर्ड वेव आती है, तो जो हमारी ऑक्सीजन के कारण कितने सारे लोग नहीं रह पाए, वैसी सिमिलर कंडीशन वापस से हो सकती है थर्ड वेव में. लाइक वी आर वेरी कमर्शियल. लाइक वी ओनली वांट कि हम लोग हमारे बारे में सोचेंगे, मदर अर्थ के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे. बट डेफिनेटली जो अभी कोविड-19 ने हम लोगों को जो रिजल्ट दिया है, मदर अर्थ ने बता दिया है कि आप लोगों का कुछ नहीं है, आप लोग इधर आए हैं, हर चीज, trees, roads, infrastructure, climate, air, each and everything is related to earth or owned by mother earth. Like आपको और मेरा कुछ नहीं. We cannot buy water, we cannot buy air, we can only buy some space. But space पे भी there are multiple choices what exactly we want to do. So this is about the World Nature Day. Let me share about our initiative, like what we are doing. And the main objective of sharing the initiative is कि आप लोग भी, if you like our initiative, please expand this project in your areas. We don't want our name to be published. This is our initiative. We are not हम लोगों को हमारे बैनर के अंडर में काम नहीं करना है इसे. So like we have started our organization in the year of 2012. Like 2012 में I was also student. स्कूल कॉलेज में जाते थे और बहुत मस्ती करते थे. लाइक अभी भी, लाइक when I able to see DME, लाइक आप लोगों ने भी काफी मस्ती करी होगी और करना भी चाहिए डेफिनेटली. बट जो एरिया से मैं आया हूँ, लाइक आई एम बेसिकली फ्रॉम चंद्रपुर इज इन विदर्भ एरिया इन महाराष्ट्र, नेक्स्ट टू नागपुर. आप लोगों ने नागपुर के बारे में सुना होगा. नागपुर से 120 किलोमीटर दूर एक जगह है चंद्रपुर, जिसे इंडिया में कोल सिटी के नाम से भी जाने जाते हैं. जब कोई भी एक गांव से आता है ना, तो उसको एक अलग वैल्यू रहती है कोई भी चीज की. और जब मैं एक गांव से शहर में आया, तो मैंने देखा कि यार शहर में तो सारी चीजें ग्लैमरस दिखती है, वही सेम चीज गांव में हम लोगों को वैसी नहीं दिखती है. लाइक जब मैं नया पुणे में शिफ्ट हुआ था, तो आई कैन सी लोग इधर बिस्लरी के बिना पानी नहीं पीते थे, और हम लोगों को अगर पानी मिल जाता था तो हम लोग खुश हो जाते थे. सो देयर वाज अ डिफरेंस इन विलेजेस एंड देयर इज अ डिफरेंस इन अर्बन सिटी. सो बेसिकली आई एम फ्रॉम चंद्रपुर में हमारी पूरी फैमिली है. लाइक आई एम बेसिकली फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड. बहुत सारी चीजें हम लोगों को सीखने को मिली. आई शिफ्टेड टू पुणे. लाइक आई वाज टॉकिंग विद माय मदर, और लाइक मैंने पूछा मम्मी कैसा सब कुछ चल रहा है उधर, एंड शी वाज लाइक शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज लाइक कोई पानी उधर नहीं आ रहा था पिछले 3 दिनों से. और जब मेरा और मेरी मम्मी का डिस्कशन हुआ कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि 3 दिनों से पानी नहीं आ रहा है. और इफ यू कैन सर्च अबाउट मराठवाड़ा सेक्शन इन गूगल, और इफ यू सर्च फॉर विदर्भ, सो आप लोगों को पता चलेगा जितने भी फार्मर्स सुसाइड करते हैं वो बेसिकली मराठवाड़ा में करते हैं, बिकॉज उधर पानी नहीं है. उधर एग्रीकल्चर के लिए, जितना एग्रीकल्चर के लिए पानी लगता है, अगर उतना पानी नहीं मिलेगा, सो देयर इज नो ऑप्शन. सो हम लोगों ने हमारा फिर 2012 में एक ऑर्गेनाइजेशन चालू किया. फर्स्ट वी हैव फोकस्ड फॉर डोनेटिंग ब्लड. सो वी हैव ऑर्गेनाइज्ड मल्टीपल ब्लड डोनेशन कैंप्स, जिसमें हम लोग हर 2 महीने, हर 3 महीने में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते थे. और हमारा टारगेट रहता था कि हम लोग 50 बॉटल 100 बॉटल डोनेट कर पाए. हॉस्पिटल्स के अंदर ब्लड लेके हम लोग डोनेट करते हैं. उसके बाद वी हैव स्टार्टेड इनिशिएटिव, जिसमें हम लोग स्कूल्स में जाना चालू करें. स्कूल्स में हम लोगों ने पहले एक अवेयरनेस क्रिएट करने का देखा कि बच्चों में हम लोग अगर एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, सो डेफिनेटली वो लोग कुछ ना कुछ अग्रेसिवली कर सकते हैं. आफ्टर दैट
I was talking with some of my mentors, some of my coach. After brainstorming, we got an idea जिसमें हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया. हमारा आइडिया बहुत सिंपल है, very very simple, and each one of you can implement in your society, in your schools, in near one. हम लोग स्कूल्स में जाते थे, एक 15 मिनट का सेशन लेते थे जिसमें वी ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी, कि आप लोग क्या करते हैं और आपका क्या बिहेवियर है रिलेटेड टू वाटर, रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू मल्टीपल पैरामीटर्स विच वी हैव. सो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें we have purchased 10 drums on single day, and we had a word with some of the schools, जिसमें हम लोगों ने स्कूल्स में बोला कि जब स्टूडेंट्स, जो बच्चे हैं, जब वो स्कूल में आते हैं तो वो 2 चीज लेकर आते हैं. एक तो बैग जिसमें बुक्स होती है और पेन पेंसिल होती है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टिफिन बैग. टिफिन बैग में आप एक सब्जी रोटी का डब्बा लेकर आते हो और एक पानी की बोतल लेकर आते हो. और जब आप बच्चे थे, ये जब मैं बच्चा था, तो अगर आपको याद होगा, सो हम लोग वो टाइम पे पानी, जरूरी नहीं कि हर रोज पानी की बोतल हमारी खत्म होती थी. सो हम लोगों ने इनिशिएटिव निकाला जिसमें हम लोगों ने एग्जिट गेट पे, 10 स्कूलों के एग्जिट गेट पे एक 500 लीटर के ड्रम रख दिए. हम लोगों ने बच्चों को एजुकेट किया. बच्चों को हम लोगों ने ये चीज बताई, जब भी आप स्कूल में जाओगे आपके पास एक पानी का बोतल होगा. जब भी आप स्कूल से वापस घर पर आओगे तो जो आपकी बोतल में बचा हुआ पानी है, वो वाले पानी को आपको ड्रम में डाल देना है. जो पानी आप घर पे जाके बोतल में से फेंकने वाले थे, वो पानी को मत फेंकिए, वो वाले बोतल में से ड्रम में पानी डाल दीजिए, और वो वाले पानी को हम लोग रीयूज करेंगे. हम लोग उसको रीयूज करेंगे, REUSE. ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, रीयूज करने का. हम लोगों ने 52 स्कूल्स में इंप्लीमेंट किया ये चीज. देखिए, उसमें 2-3 एडवांटेजेस आपको पहले मैं बताता हूँ. एक तो बच्चों की साइकोलॉजी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई. लाइक अगर कहीं पे भी वॉशरूम में जाते थे अगर वो लोग, और पानी नल खुला दिखता था उनको, तो नल जाके बंद करते थे. अगर कोई बच्चा पानी से खेल रहा है तो उसको बोलते थे, अरे डोंट वेस्ट वाटर. इंपॉर्टेंट ये हुआ, जो बचा हुआ पानी था ड्रम के अंदर, वो ड्रम के पानी को हम लोगों ने रीयूज करना चालू किया क्लासरूम क्लीनिंग में. अगर आप एक चीज आइडेंटिफाई करोगे, जो हम लोग फ्रेश वाटर लेके क्लासरूम क्लीन करने वाले थे, हम लोगों ने उसका एक रिप्लेसमेंट बना दिया. हम लोगों ने बोला, जो उधर की मेड है, कि आपको ये वाले फ्रेश वाटर यू डोंट वांट टू यूज, आपको फ्रेश वाटर यूज नहीं करना है. आप लोगों को जो है, जो हम लोगों ने एक ड्रम में पानी जमा करके रखा है, वो वाले पानी से आपको क्लासरूम क्लीनिंग करना है. आप जो वॉशरूम क्लीन करते हो, आपको वॉशरूम वो वाले पानी से करना है. हम लोगों ने बस के ड्राइवर्स को बोलना चालू किया कि जो बसेस है जिसको आप क्लीन करते हो ऑन अ डेली बेसिस, एक बस को क्लीन करने में 1000 लीटर पानी वेस्ट होता है. डू यू नो दैट? फॉर क्लीनिंग अ सिंगल बस वी वेस्ट 1000 लीटर ऑफ वाटर. What we have decided, we told the bus driver not to use the fresh water, use that ड्रम वाला वाटर जिसमें आप बकेट में पानी लोगे, बकेट से वो क्लीन करोगे. उससे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने, अगर इफ यू रियली सी, अगर आपके सोसाइटी में अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा या रोड पे ऑब्जर्व किया होगा, सो हम लोग जनरली जो झाड़ों में पानी डालते हैं वो पाइप से डालते हैं. ठीक है, पाइप से डालते. कभी आपने ऑब्जर्व किया है झाड़ों में पानी कितना जा रहा है, रोड पे कितना पानी वेस्ट हो रहा है? आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा ये सारी चीजें. ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम लोगों को वी वांट टू मेक श्योर कि हम लोग एक एक बूंद पानी बचाए करके. सो हम लोगों ने कॉलेज की मेट्स, कॉलेज के प्रिंसिपल, कॉलेज के स्टूडेंट्स, कॉलेज में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, जिसमें हम लोगों ने एक ही चीज बोली उन लोगों को कि जब भी आप झाड़ों को पानी डालोगे, बकेट में ही पानी लेके डालना है. अभी मैं आता हूँ बच्चों की साइकोलॉजी में. एक छोटे से इनिशिएटिव से, लाइक हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हमारा इनिशिएटिव पूरे पैन इंडिया लेवल पे जाएगा. एक छोटे से इनिशिएटिव से बच्चों की साइकोलॉजी, लाइक आई कैन नॉट चेंज माई, लाइक मैं मेरे को खुद को समझने में अभी जितनी मेरी अभी समझदारी है, लाइक आई थिंक आई एम वेरी स्मार्ट, बट जब हम लोग एक ग्रोइंग स्टेज पे होते हैं, बच्चों को समझाना इज वेरी इजी इफ यू रियली सी. ठीक है, I cannot change the psychology of my parents at now this age, but
जब आप 5-6 साल के बच्चे होते हैं, 10 साल के बच्चे होते हो, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा होता है कि अगर पेरेंट्स को कोई चीज बोल दो तो बुरा मान जाते हैं वो लोग, और पेरेंट बोलते हैं तो कुछ भी बोल देता है, बट जब छोटे होते तो पेरेंट्स इतना बुरा नहीं मानते। सो हम लोगों ने, बच्चों ने जाके पेरेंट्स को बोला कि हम अब से आप मेरे को है ना पूरी पानी की बोतल मत भर के देना, पॉइंट नंबर 1। अगर इफ यू रियली सी, एक एक स्कूल में ऑन एन एवरेज 1000 बच्चे होते हैं, एक पानी की बोतल 750 ml की होती है। बच्चों ने बोल दिया आप 750 ml मत भरा करो आपसे, क्योंकि मेरे को इस्तेमाल ही नहीं होता है, आप मेरे को है ना छोटी बोतल दिया करो। तो उधर हम लोगों ने छोटा छोटा पानी बचाना चालू कर दिया। सेकेंड, जब मेड घर पे आती है और जब बर्तन धोती है या कपड़े धोती है, सो इफ यू लाइक टीचर्स यू विल अग्री कि वो लोग नल चालू कर देते हैं और अपना काम दूसरा चलते रहता है, राइट। बच्चों ने जाके मेड्स को बोला कि आपने वो नल क्यों चालू किया, और लाइक वी हमारे बहुत सारे सपोर्टर्स भी है, और लाइक बहुत सारे लोगों से हमको गालियां भी पड़ती है कि आपने हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया, कि लाइक हमारी मेड्स को कुछ भी बोल देते हैं बच्चे आजकल, बट कुछ भी बोलेंगे तो ही अच्छा है। थर्ड, बच्चों ने पेरेंट्स की साइकोलॉजी चेंज करना चालू करी कि यू नीड टू नो कि आप लोग पानी कैसे कर रहे हो। लाइक एक दो केस स्टडी मैं आपको शेयर करूंगा। एक 4 साल का बच्चा है स्कूल में, जब हम लोग स्कूल जाते थे तो हमसे काफी सारी चीजें सीखते थे वो। एक संडे की बात है, संडे के दिन सुबह सुबह का टाइम 8 बजे उनके पापा उठे, वो उनके बढ़िया ब्रेकफास्ट वगैरह किया उन लोगों ने। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो बोले कि आज तो संडे है, चलो आज मैं क्लीनिंग कर लेता हूँ। उन्होंने घर की पूरी क्लीनिंग कर ली। सेकेंड, उन्होंने डिसाइड किया चलो आज यार मेरी कार बहुत खराब है, मैं आज मेरी कार को धो लेता हूँ। जब उन्होंने कार को धोना चालू किया तो वो बच्चे को उसके पापा ने बोला कि काम कर बेटा, जा तू पाइप जोड़ दे और नल चालू कर दे। जैसे उसने किया, उसके बेटे ने नल तो जोड़ा नहीं, और उसके पापा ने बोला कि मैंने ना बकेट में पानी भर दिया है, आप बकेट लेकर आ जाइए, मैं तो उठा नहीं पा रहा। एंड ये जो चीजें, ये छोटी छोटी चीजें जब हम लोगों को टीचर्स ने शेयर करी, दिस वाज रियली इंस्पिरेशन फॉर अस। लाइक वी, एक छोटे से इनिशिएटिव से वी आर ट्राइंग टू इंस्पायर अदर्स। सो मैं इसमें एक ही कंक्लूजन में बोलूंगा आपको, नेवर थिंक अबाउट कि हम लोगों का इनिशिएटिव छोटा है, हमारे एक छोटे से इनिशिएटिव से इम्पैक्ट आएगा क्या, सोसाइटी में कुछ इंपॉर्टेंस बढ़ेगी क्या। कभी भी मत सोचो। लाइक हम लोग, आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे को 3 स्कूल वालों ने रिजेक्ट कर दिया था डे 1 पे, व्हेन आई विजिटेड स्कूल। और जब हम लोगों ने उनको बोला कि वी वांट टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया, दे टोल्ड मी ये सब फालतू के आइडिया हमारे पास मत लेकर आइए करके। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले जो है, डोंट लाइक, वो बोल एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोलते कि पहली वाली सक्सेस में इतना खुश मत हो जाइए। हम लोग क्या करते हैं जनरली, पहली बार में इतना खुश हो गए कि चलो हम लोगों को स्कूल्स नहीं करते। फर्स्ट 3 schools rejected our proposal, 4th school gave us an opportunity, ठीक है let's implement, and after trying a lot we got the opportunity, because जो हमारा इनिशिएटिव था वो इनिशियली तो ऐसा लग रहा था कि ये तो यार बचकानी हरकतें कर रहे हैं करके आप लोग, बट वो एक स्कूल से लाइक we have we have presence in 50 to 54 schools on a daily basis. Averagely मैं बोल रहा हूँ, on a daily basis we are saving 40,000 liters per day. 40,000 लीटर किसको बोलते हैं एक बार आप देख लीजिए। उससे इंपॉर्टेंट, वी ट्राई टू चेंज साइकोलॉजी ऑफ आवर स्टूडेंट्स। बच्चों की साइकोलॉजी चेंज हुई है, जो कि आज एडवांटेज नहीं है उसका, आज से 10 साल के बाद सोचिए। अगर आज से ही हम लोग हमारे बच्चों को सिखाना चालू कर देंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, या हम लोगों ने उनकी साइकोलॉजी चेंज करना चाहिए। वो ड्रम से हम लोगों का एक नया नाम रखा गया। हम लोगों को जब भी लाइक छोटे बच्चे तो हम लोगों को नाम से नहीं जानते थे, तो कभी भी लाइक इन महाराष्ट्र ब्रदर को बोलते हैं दादा, ठीक है, भाई जो ब्रदर सिस्टर होते हैं ब्रदर को बोलते हैं दादा। सो जब भी हम लोग जाते थे तो हम लोग को बोलते थे देखो वाटर दादा आ गए करके। सो सिमिलरली वी गॉट अ नेम ऑफ वाटर दादा. We got appreciation from Limca Book of World Record because they have appreciated the initiative which we have taken. This was appreciated by government of Maharashtra, government of Madhya Pradesh. Many organization, association have invited us to implement in their societies, to implement in schools.
soon, like because of like अभी तो lockdown ही चल रहा है, but after few days we have already got approval to implement the same idea in 3,500 schools in Pune district. So if you really see, agar if we are going to initiate this idea in 3,500 school, like we will be saving lakhs liter of water on a daily basis. So the main intention for the topic is to take initiative to make sure कि हम लोग को से ही शुरुआत करनी है, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई चीज नहीं होगी. वी कैन ऑलवेज ब्लेम, लाइक आई कैन ऑलवेज ब्लेम यू, यू कैन ऑलवेज ब्लेम मी कि कुछ हमारा हो नहीं रहा है, देखो उन्होंने कचरा फेंक दिया है, पोल्यूशन इतना हो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है, ट्री प्लांटेशन नहीं हो रहा है. मेरा एक ही रिकमेंडेशन रहेगा, एक ही सजेशन रहेगा, एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, डोंट ब्लेम एनीवन. हो रहा है ना, ट्राई टू चेंज दैट थिंग एंड स्टार्ट द इनिशिएटिव. If you're not going to start that initiative, like we will be always blaming, gaming, वही चलते रहेगा और हमारी ऐसी जिंदगी खत्म हो जाएगी. और जितना हम लोगों को हमारी सोसाइटी से मिला है वो चीज हम लोग कभी रिटर्न नहीं कर पाएंगे. So I really want to thank DME school, DME college, Saxena Saab for inviting me. I hope like I have shared some of the points with the student and this will definitely give some value. और मैं आपसे टच में रहूंगा सक्सेना साहब. लाइक आई वुड लाइक टू नो अगर किसी ने इनिशिएटिव लिया है, सो हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट. लाइक आई पर्सनली वांट टू विजिट योर स्कूल वेयर आई कैन हेल्प some of your students. I want to guide some of your students, जिसमें हम लोग इसको एक नेशनल लेवल का इनिशिएटिव लेके जाए. I am not only talking about water. I want to take any initiative they want to take. Like उनको अगर ट्री प्लांटेशन में मजा आता है तो ट्री प्लांटेशन करेंगे, वाटर में मजा आता है तो वाटर में करेंगे. So you're most welcome, Vedantji, because our students are very enthusiastic, very forthcoming, and they really want to do something good for the society, and that is how this whole association has been, this council has been set up. This is a council, Spark. This is completely handled by the students. So the idea as to what all is to be done like this, the idea of conducting this session also came from them only. So my job was to facilitate and to think of somebody who could be invited as a guest and who can add value to the program. So मेरा job उतना ही था, and then obviously if you can guide them and if you, as you have done this all motivation and all, and this is like self realization, जहाँ पे लोगों को बहुत सारी चीजें जो नहीं समझ में आ रही थी, with your expression they would have understood the things in a better way. So right. You are most welcome to associate with us and we together can do something worthwhile. Sure. Now I would request Ms. Krishna Pandey, Assistant Professor, DME Media School, to moderate the question answer session. Thank you so much, Sophia. Thank you so much, Vedant sir, Thank you, for madam. such an interesting session about water conservation that you've spoken about. And it's an initiative which definitely should be used in all the schools and colleges. Right. I have so many questions. First and foremost question has come from one of the student, and this is regarding Maharashtra. And according to that student, Maharashtra is facing worst kind of climatic disruption. At one place, it is too much of flooding. Another, there is acute water shortage, as you're saying. And then the pandemic, again, is creating havoc with the lives of people in Maharashtra. So how do you see that disruption? What are the causes that have led to that kind of situation? And what should be done to avoid these kind of situations in future? So, like, I personally in touch with government. Like, there are some initiatives where we are working, and like जो अभी कंडीशन हुआ है महाराष्ट्र का, like in कोल्हापुर, in मुंबई, some of the area, like हम लोगों को डेली न्यूज में दिख रहा है. So हम लोगों ने कुछ ना कुछ वाटर्स के रिलेटेड, पानियों के रिलेटेड, we have created some strategy, ठीक है, with the government, and we will be implementing on a very small in a corporation level right now. If we got that success,
in the corporation area, definitely we will be submitting our proposal in CMO office. और there are multiple societies जिसमें कि societies इन लोगों ने भी काफी सारे इनिशिएटिव अभी ले रहे हैं. If you really see, there are multiple NGOs, there is an NGO called Pani Foundation of Amir Khan. उन लोगों ने भी काफी सारे इनिशिएटिव लिए हैं. I totally agree. We cannot change the situation currently we had, but let's hope for the best. And some of the initiatives will be coming soon in Maharashtra. Water is the theme of most of the questions here. Mohit Kishore, Assistant Professor, DME Media School, he wants to find out that we talk about conserving our natural resources, but if we look at our cities and urban areas, we don't find lakes, which probably existed a decade ago. What can be done to improve that situation? बहुत अच्छा सवाल पूछा उन्होंने. मैं उनसे एक रिवर्स सवाल पूछना चाहूंगा. आप लोगों ने जब घर बनाया था तो परमिशन तो लिया होगा ना घर बनाने के लिए, राइट? हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते कि हम लोगों को ना एक हमारी जीडीपी की ग्रोथ चाहिए. ठीक है, आपने लेक्स की बात करी. आज के टाइम पे देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑर्गेनिक. इफ यू रियली सी, एवरीथिंग इज अनऑर्गेनिक. और इफ यू रियली सी, आई हैव अ रिपोर्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट. सदगुरु, you might be aware about सदगुरु जी. वो लोग इतने अग्रेसिवली इनिशिएट कर रहे हैं उनके आइडियाज को, जिसमें वो लोग बोल रहे जो भी उनके पास गंगा है, जितने भी नदी है, उन सबको क्लीन करने की बात कर रहे हैं वो लोग. और अगर इफ यू रियली सी, जो हमारे फॉरेस्ट एरिया है, आज के टाइम पे तो आप ये सवाल पूछ रहे हैं, आने वाले 5 साल बाद आप ये पूछोगे कि मेरे से 100 किलोमीटर दूर तो मेरे को फॉरेस्ट दिखता था एक टाइम पे, आज के टाइम पे तो वो भी नहीं दिख रहा है. सो व्हाट आई वांट यू एंड मी टू टेक द इनिशिएटिव, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट को स्टॉप कर सकते हैं. एंड देयर इज नो ऑप्शन कि हम लोग वो जो लेक है वो दैट इज नॉट नेचुरल. हर चीज आज के टाइम पे बनाई जा रही है. आज आप ये देखिए, आज आप अर्बन सिटी में रहते हैं, जब आप एक विलेज में जाओगे, छोटे गांव में जाओगे, तो आपको एक अलग फीलिंग आती है. क्यों आती है? क्योंकि उधर जो चीज थी वो चीज अभी है. बट आज के टाइम पे हमारे अर्बन, जैसे आज नोएडा में आप बात कर लीजिए, आप दिल्ली में बात कर लीजिए, पोल्यूशन की कोई कमी नहीं है, पॉपुलेशन की कोई कमी नहीं है, सारे के सारे लोग आ रहे हैं. डेफिनेटली हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों को मेक इन इंडिया भी चाहिए, हम लोगों को एक्सपोर्ट भी करना है, बट हम लोग नेचर के रिलेटेड कुछ नहीं करेंगे. So we want to take some of the initiative to stop construction, or if you want to have construction, थोड़ा एक systematic way में, like you can check map of USA. USA के मैप में जो हर एक बिल्डिंग है वो एक अर्बनाइज लेवल पे बहुत प्रॉपरली सेटअप करी गई है. हमारे इसमें जो लोकल पॉलिटिशियंस है उनको आप बोल दीजिए, आपका काम हो जाएगा. Like I hope what I'm trying to say. Yogesh Best wants to ask you this question. The theme of the World Nature Conservation Day 2021 is Forest and Livelihoods, Sustainable People and Planet. How can we look for ways to work on this and bring about necessary positive changes amid COVID crisis? So Yogesh जी, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे. फॉरेस्ट को हम लोगों को बढ़ावा देना है, नेचर से हम लोगों को बढ़ावा देना है. Definitely we are talking about positive change, but positive change will be start from us, right? We cannot expect each and everything from government, and we have to take some of the initiatives, जिसमें कि हम लोग ऐसा कोई इनिशिएट करें, साथ में हम लोग कोई एनजीओ के साथ जुड़े, जिसमें हम लोग सोसाइटी के लिए काम करें, और उसी से ही सारी चीजें होगी. सुचि पाठक आपसे जानना चाहती हैं कि डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ हार्मिंग नेचर इज राइट, खासकर जब जो चीजें लैंडस्लाइड्स होते हैं और इतने फ्लडिंग होती है, तो डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर क्या सही है? सवाल तो बहुत क्रिटिकल है. उसका रीजन ऐसा है कि फिर ये नहीं करेंगे तो फिर बाकी के लोग बोलेंगे कि हमारी इंडिया डेवलपिंग कंट्री नहीं है. सो इसके लिए हम लोगों को प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आई सी इज लाइक जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है, देखो नेचर
कभी भी प्रायोरिटी है. डेवलपमेंट इज सेकेंडरी ऑलवेज. नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो व्हाट आई सी कि हम लोगों को एक प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए गवर्नमेंट की. वापस से मैं वही बोलूंगा कि जैसे यूएस में इतना डेवलपमेंट है, वो एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुआ है. और आज लाइक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, लाइक जो अभी की जो करंट सरकार है, जो करंट गवर्नमेंट है, दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क. लाइक कोई सरकार ने आज तक इतना अग्रेसिवली काम नहीं किया फॉर नेचर, फॉर डेवलपमेंट. लाइक इन महाराष्ट्र there was a ex finance minister, and his name is सुधीर मुंगंटीवार. उन्होंने 1 करोड़ ट्री प्लांटेशन की 1 साल के अंदर अंदर. you have to read the success story of सुधीर मुंगंटीवार. so like nature is very important. नेचर के अलावा नेचर प्रायोरिटी है कभी भी. डेवलपमेंट इज सेकेंडरी ऑलवेज. सर इसके साथ लिंक 2 सवाल है हमारे पास. अगेन ये मोहित जो है उनका सवाल है कि बहुत सारे एनजीओज और गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मैसिव ड्राइव लेते हैं ट्री प्लांटेशन का, लेकिन उसके बाद कोई उनका स्टेटस चेक नहीं करता है. दूसरा सवाल उससे रिलेटेड विशाल मलिक का है कि व्हाट अप्रोचेस कैन बी यूज्ड टू फाइनेंस द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट और नेचुरल इकोसिस्टम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज. पहला सवाल किसका था, उनका नाम बताएंगे? पहला सवाल भी मोहित किशोर वत्स का था, वो असिस्टेंट प्रोफेसर डीएमए मीडिया स्कूल में. मोहित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा वापस से. आई रियली अप्रिशिएट. हम लोगों ने एक ही सिंपल काम किया कि इतना सारा इनिशिएटिव लिया, उसके बाद क्या हुआ. मेरा एक थोड़ा सोचना अलग है उसमें. मैं आपको बोलूंगा वो इनिशिएटिव लिया ना, हम लोग उसको आगे बढ़ाते. आगे उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने ट्री प्लांटेशन किया एज अ ग्रुप. हम लोग एक 100 लोगों का हमारा ग्रुप बनाइए. हर चीज न्यूज में आती है, न्यूज से अपन पढ़ के अगर कोई चीज नहीं होती तो वी टेक द इनिशिएटिव एंड वी स्टार्ट इट. सर एक महिमा गुप्ता का सवाल है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है इकोनॉमिक कंजर्वेशन के लिए. like we can any awareness is good. like you do through social media, you do through ground reality. You can create any pages, you inspire people. like हम लोग आज की जो यूथ जनरेशन है, we can do anything. आज से और जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो तो अपने से भी 100x रहने वाले. और आज जितना हम लोगों को टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, उतना टेक्नोलॉजी का सपोर्ट और किसी को नहीं है. सो वी कैन इंस्पायर एनीवन थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ऑफलाइन, थ्रू गोइंग टू एनी प्लेस. सो लास्ट क्वेश्चन है, ये 2 सवाल हैं, दोनों जो है काफ़ी मिलते जुलते हैं. प्रमोद कुमार पांडे हैं हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर और सुकृति अरोड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और उन दोनों का सवाल जो है वो कंज्यूमरिज्म पे है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंज्यूमरिज्म को कैसे जो है बैलेंस किया जाए. आपकी डिज़ायर्स भी हैं, साथ में आपको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी चाहिए, आपको गाड़ी भी चाहिए, आपको फ्रेश एयर भी चाहिए. कैसे इस दोनों चीज़ों को आप बैलेंस करेंगे? हर चीज तो नहीं मिल सकती मेरे हिसाब से. अगर हम लोग बोलेंगे कि हमको सारी चीजें चाहिए तो कोई चीज के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट. सो इफ यू वांट आवर कंफर्ट जोन एंड इफ यू वांट कि हमारे पास पैसा चल कर आ रहा है, हमारी जिंदगी बढ़िया चल रही, तो लाइक वी वांट टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी, लाइक. और अगर मेरा क्या एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, जब मैंने कोई चीज सोसाइटी को दी है ना, छोटी से छोटी चीज है, सोसाइटी ने मेरे को 100 गुना दिया उसने. आज मेरे को नहीं मालूम, मैं आपको नहीं जानता था, मैं सक्सेना जी को नहीं जानता था. सक्सेना जी ने मेरे को कैसे ढूंढा, वो मेरे से कैसे कनेक्ट हुए और वो कैसे मिला, आई डोंट नो. बट दिस इज ऑल अबाउट नेचर. उन्होंने मेरे को कैसे ढूंढा, आई डोंट नो. मैंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जैसे उनको लगा होगा, नहीं तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग इतना पॉसिबल है हर चीज से मिलना. सो लाइक वी वांट टू गिव इट टू सोसाइटी. और जब तक आप सोसाइटी को नहीं दोगे ना कोई चीज, सोसाइटी आपको कुछ नहीं देगा. आज मैडम आप लोग सब कुछ देते हैं, राइट. आप एज अ टीचर आप सब लोगों को देते हो, तो जो हमारे जिंदगी में परेशानी आती है वो ऑटोमेटिकली जाते रहती है, वो दिखती नहीं है परेशानी. बिकॉज यू आर नॉट अ एंटरप्रेन्योर. लाइक इफ यू रियली सी एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, आप लोग एक बिजनेस ओनर नहीं है, आप लोग एक सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो. डेफिनेटली पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, नो डाउट, बट एक
हम लोग कमर्शियल लोग नहीं है, हम लोग को सोसाइटी को देने के लिए आए हैं. Thank you so much, sir. Over to you, Sufia, now. Thank you, sir, for such insightful words. Nature is vital for our survival and for all life to thrive on this planet. It's important that we begin to develop a relationship with it rather than destroy it. We are all interconnected. Let's have a glance at a video made by Spark members on their contribution to the nature conservation. I would like to thank the video editor, Anwar Hassan, and students behind the making of this video are Priya Mishra, Yogesh Bhisht, Muskan Baveja, and MS Divyasri. वृक्ष कबहु नहीं फल बकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणी साधुन धरा शरीर. Two very important messages emerge from this couplet of Kabir Das is, firstly, there should be a feeling of philanthropy in all of us. Secondly, how selfish have become today's people. The nature, which is the basis of our being, we keep on hurting it continuously. Everyone knows how to destroy nature, but people start making excuses as soon as they ask how to save it. Today, we want to show you how you can make a big contribution to save nature by doing least amount of efforts. One of the easiest and most efficient ways to garden in a small space can be a balcony like I did. And the environmental benefits of gardening are uncountable. Growing your own food reduces carbon footprints and plants naturally clean the air and ground. First, these are all medicinal plants, aloe vera, and this plant is used for migraine. These are spring onions. This is turmeric. And this is ginger. Pudina. And these are red spinach. Gardening impacts from everything, the air we breathe in to the minimization of carbon footprints we leave behind. Even if you have a small space and maybe it be small containers on the terrace, take advantage of it and be a part of a healthy environment impact. ये हमारी छोटी सी क्यारी है और हमने यहाँ पर कुछ कुछ सब्जियाँ, औषधियाँ और काफ़ी कुछ उगा रखा है यहाँ पे. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये पुदीना है और ये यहाँ पर करेले की बेल है. ये करेले इसमें कुछ कुछ आ भी रहे हैं. ये तुलसी का पेड़ है, ये न्याजबो है, ये लीवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ऑक्सीजन प्योरीफाई करता है. ये वाला पेड़ बहुत अच्छा है घर पे लगाने के लिए. अपने पास लेमन ग्रास है और हमारे यहाँ काफ़ी सारी औषधियाँ हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ मधुनाशिनी, इंसुलिन और कपूर और अमेरिकन तुलसी, इन सब का भी हमारे पास सारे औषधियों के भी पेड़ हैं. अच्छी तरह से हम लोग यहाँ गार्डनिंग करते हैं. Peace is a state of mind that almost everyone craves for. I always start and end my day sitting on my balcony, watching my little plants grow more every day. We should plant fruits and vegetables in or around our homes. Growing food organically means sparing the earth of water, soil and air pollution. You can enjoy the earth's bounty without harming the environment. We should also take care of the animals around us and understand that they also need our help to survive. Water is also one of the most integral parts of our mother nature and people waste it. Nature doesn't need people. We people need the nature. So protect it, conserve it and take good care of it. Nature conservation is keeping Earth the way we like it, in a way which looks after the needs of both humans and young beings. Natural resources like water, air, soil, etc. are all gifts of nature. Use them wisely and save it for the future generation. As you all hear, many people plant trees because either they get peace from it or for health benefits. But the biggest thing is that you are conserving nature.
we have some more simple ways by which you can conserve nature. Follow the 3 R's to conserve the natural resources and landfill space. Conserve every drop of water. Growing your own veggies is sustainable and help to nourishes your soil by using natural fertilizers. Adapt sustainable behavior. Don't let Mother Nature to become a once upon a time. The nature is what we all have in common, so it's our responsibility to conserve it. The Student Council of DME Media School, SPARK, organized an intra-college digital poster making, poem writing, and article writing competition to commemorate the World Nature Conservation Day this week. Now, I'd like to invite Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, to announce the results of this competition. Thank you, Sophia. So, World Nature Conservation Day, an article writing first prize goes to Ms. Nikita Taneja, BGMC, Section B, and Ms. Anjali Kulal, second prize, Section C in BGMC. Poetry writing first prize goes to Ms. Priya Mishra, BGMC, Section C. Second prize goes to Ms. Diksha Dogra, Section A. And in poster making, first prize goes to Sahil Gildial, Section C. And Ms. Bhavna Verma from BBA, 4th semester, Section A. So these are the strengths, और जिसमें participation काफी strengths का हुआ था और selection सिर्फ इन्हीं strengths का हुआ है. So thank you to all to present your creativity, and I think poster making वगैरह में जो भी participation हुआ, that was very good. और writing skills वगैरह में लोगों ने किया, and this जो अभी आज performance हुई है, that is very nice. Student बहुत creative हैं, बहुत कुछ करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है. So students ने जो भी किया, and thanks to वेदांत जी, इन्होंने जिस तरह का presentation किया, students से interaction किया, that was very appealing to all of us. And it is a great endeavor of SPARK conducting such as an enriching session on the World Nature Conservation Day is praiseworthy. We all must understand the fact that conservation of natural resources is vital for our life. In fact, these resources are the lifeline. It is essential for sustainable development. और जो मोहित ने बात की या जो वेदांत जी ने बात की, बेसिकली डिसबैलेंस ऑफ नेचर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेस को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं. जो पानी की बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा. आप चाइना देख लीजिए, कोरिया देख लीजिए, इंडिया देख लीजिए, कहीं भी ये सारी जगह हो रहा है. एंड हमारे यहाँ तालाबों की बहुत कमी हो गई है, पॉन्ड्स की इतनी ज्यादा कमी है और हम ग्रेजुअली पॉन्ड्स को खत्म करते जा रहे हैं. मोहित ने लेक्स की बात की. लेक्स के अलावा कुओं की, गांव में कुएं हुआ करते थे, कुओं के नाम पे ट्यूबवेल्स और ट्यूबवेल्स हुआ करते थे जो सिंचाई में काम आते थे, लेकिन वो सारे ग्रेजुअली खत्म होते जा रहे हैं. वाटर पंप, जहां आपकी बिजली भी खर्च हो रही है, जहां आपका पानी भी मिसयूज हो रहा है. और तालाब में, मेरे देखते देखते मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरे गांव में भी बहुत सारे तालाब थे और तालाब वहां धीरे धीरे तालाबों को खत्म करके वहां कुछ ना कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो जा रहा है. तो ये सारी जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है फॉर सोसाइटी. और जो अभी के न्यू जनरेशन है उनको ये रियलाइजेशन है ही नहीं कि तालाब होता क्या है. अगर आप समझ सकते हैं कि तालाबों की इम्पोर्टेंस गांव में बहुत थी,
इवन मुझे बॉम्बे का पता है कि वहाँ जो पॉन्ड्स हैं वो जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। वो वहाँ पर जब बारिश नहीं होती है तो आर्टिफिशियल रेन्स का भी अरेंजमेंट किया जाता है, एंड जब ज्यादा बारिश होती है तो स्टोरेज होता है वहां पे टू सप्लाई फॉर वाटर। तो जब आप वाटर कंजम्पशन करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, तो वो हम कोई भी कर सकता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, अगर हम स्टोरेज, वाटर स्टोरेज हम बिल्डिंग की छत पे कर सकते हैं, हम बिल्डिंग में प्लांट्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं। अभी कुछ जगह ये अरेंजमेंट शुरू हुए हैं कि आप रूफ्स पे प्लांटेशन करते हैं, आप रूफ्स को यूज करते हैं सोलर एनर्जी के लिए, आप रूफ्स को वाटर सेव करने के लिए करते हैं, बट नॉट इन ऑल सोसाइटीज, नॉट इन ऑल सिटीज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन सारी चीजों को रियलाइज करें, और ये जो यंग जनरेशन है अगर ये रियलाइज कर लेगी तो इन फ्यूचर हम जो प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे हैं वो शायद नहीं करेंगे। हमें बहुत सक्सेस मिलेगा इन सब चीजों को कंट्रोल करने में, सेव करने के लिए। चाहे वो वाटर की बात करें, हम ट्रीज की बात करें। अब मैं अपने ट्रीज की बात करूं, मेरे पास 100 ट्रीज हैं, जैसे अभी बच्चों ने दिखाया इतना सारा। मेरे पास भी मेडिसिन वैल्यू के भी हैं, नॉर्मल भी हैं, फ्लावर्स के भी हैं। बट आपको अगर शौक है और नहीं है, आप छोटी सी जगह में कर सकते हैं, बट ये इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है और तब आप कुछ कर सकते हैं। Thank you to all of you. Now I'd like to call Priya Mishra, winner of poem writing competition, to share her poem. तो ये पोइट्री बेसिकली जो नेचर है वो इंसानों से कुछ कह रहा है, तो उसके ऊपर है। प्रिय मनुष्य, जैसे ग्रीष्म ऋतु के भीष्म ताप से तू पल पल ढहता जाता है, धीर खोती धरती तेरी मेघों का वचन भी खंडित होता जाता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु के भीष्म ताप से तू पल पल ढहता जाता है, धीर खोती धरती तेरी मेघों का वचन भी खंडित होता जाता है। त्राही त्राही करते करते जीव चराचर लौटे हैं, सहन छीनकर उनके तूने अपने शहर बनाए हैं, तूने अपने शहर बनाए हैं। तड़पी है ये धरा में जानू, तिल तिल कर हर तरु है मरता। तड़पी है ये धरा में जानू, तिल तिल कर हर तरु है मरता। बूंद बूंद को तरसेगा, क्यों ये खबर न तेरे जहन में उतरा, क्यों ये खबर न तेरे जहन में उतरा। सूखी जाती जलमालाएं बसंत भी पतझड़ में बदला, सूखी जाती जलमालाएं बसंत भी पतझड़ में बदला। अनावृष्ट अकाली पड़ी हुई है, ए मनुष्य कैसे न तू बदला, ए मनुष्य कैसे न तू बदला। गतिशील समय है बीत रहा, अंतिम क्षण है नजदीक खड़ा। गतिशील समय है रहा, अंतिम क्षण है नजदीक खड़ा। हर बूंद बूंद की रक्षा कर, हर दिन तू बस एक वृक्ष लगा, हर दिन तू बस एक वृक्ष लगा। सौंधी खुशबू आएगी, सौंधी खुशबू आएगी, फिर अपनी धरा की प्यास बुझा। शीत से शीतल हृदय बना, शहर से पहले बागों का तू सहन बना, बागों का तू सहन बना। मैं धीर धरी प्रकृति हूँ, मैं धीर धरी प्रकृति हूँ, मुझको ना अब और सता। कर्तव्यों का मोल समझकर अपना जीवन स्वयं बचा, अपना जीवन स्वयं बचा। थैंक यू। Moving on, the day reminds us that we need to give back to the nature instead of just using resources without thinking about conservation. Rethink, replenish, and recycle are the key to a sustainable future. It's our duty to take care of this world we live in. World Nature Conservation Day is a great opportunity to celebrate the progress we have made and determine to take action. It's an opportunity to recommit ourselves to this beautiful earth so that we can enjoy a more sustainable future. With that note, let's move towards the end of this session. So now I would like to invite Dr. Susmita Bala to give the concluding remarks. मैंने concluding remark वैसे तो दे दिया है, लेकिन actually environment और इन सारी चीजों को देखते हुए मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन टाइम अगर परमिट करता है, क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज की जब बात करते हैं तो उससे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जो हमने प्लांट्स की बात की, हमने अपने रिवर्स की बात की, हमने अपने तालाब की बात की, पॉन्ड्स की, कुओं की, वेल्स,
हमारे गांव में मतलब शहरों में तो वेल्स जानते भी नहीं होंगे लोग कि क्या होता है, लेकिन कुएं के बिना काम नहीं होता था। कुएं से, और वो कुएं जो होते थे, वेल्स होते थे जस्ट फॉर नॉट कि पानी भरना है, वो एक सोसाइटी, उनके फीमेल के लिए एक ऐसा प्लेस होता था जहां वो आपस में एक दूसरे की बातों को शेयर करते थे। कम्युनिकेशन का एक प्लेस होता था, क्योंकि वो ऑल द टाइम वो घरों घरों पे जाके बात करने का टाइम नहीं होता था, तो उतनी देर वो अपनी बातों को शेयर कर लेते थे। इस तरह से पॉन्ड्स में भी, पॉन्ड्स का यूज तो यहाँ मैं इतनी सारी बातों को कैसे शेयर कर सकती हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप नेचुरल रिसोर्सेस को रेस्पेक्ट करिए और जिन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं उनको जानने की कोशिश करिए। हमारे यहाँ दिल्ली में अक्षरधाम टेम्पल बना हुआ है, वो रिवर बैंक पे बना हुआ, रिवर वहां खत्म करके और उस जगह बना दिया गया। तो आप, रिवर सब खत्म हो गई, एक्चुअली रिवर नहीं है। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो हम कितना सरवाइव कर पाएंगे। जो जितनी हमें प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं उनका रीजन ही ये है कि हमने वो सारे जो जगह थी उनको बंद कर दिया है, नदियों के रास्ते बंद कर दिए हैं, उनको ब्लॉकेज कर दिया है। तो आपको या तो शहर में प्रॉब्लम होगी, पानी अगर जाएगा तो कहीं तो जाएगा ना। जो हमारे यहाँ सिटी में प्रॉब्लम, दिल्ली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बॉम्बे में इतना पानी बरसता है कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दिल्ली में अगर 24 आवर्स हाई रेन्स हो जाएंगे तो दिल्ली डूब जाएगा। तो हालत यह है कि हम उनको कैसे बचाएं, हमने कोई तरीके नहीं सोचे हुए। अगर हम इसके लिए तरीके सोच लें कि हम उसको कैसे सेव कर सकते हैं, वाटर सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, वाटर को हम कंज्यूम कहाँ कर सकते हैं, उनको हम कोई भी तरीका उसके लिए, और गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह के काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग की जरूरत है, स्पेस की जरूरत है, टेक्निकल थिंग्स की जरूरत है। तो बहुत बातें की जा सकती हैं, लेकिन हाँ, किसी भी तरह से कुछ प्लानिंग, कुछ इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं जो हमें करने चाहिए। और जितना आप कर रहे हो वो अच्छा है, उससे ज्यादा एफर्ट्स करो, बस यही मैं कहना चाहूंगी। और वेदांत जी को तो मैं जरूर इंस्टीट्यूट में बुलाऊंगी, और थोड़ा नॉर्मल हो कंडीशंस तो आप आइए दिल्ली और फिर इंटरेक्ट करिए बच्चों के साथ में, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। For the vote of thanks, I would like to call Tina. Thank you, Sophia. Firstly, I would like to thank our special guest, Mr. Vedant Goyal. Thank you, sir, for giving us such an insightful session and for sparing your precious time with us. I would also like to express my gratitude towards Professor Dr. Amrit Saxena, Dean DME Media School, and Professor Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, for their gracious presence. Now, I would like to express my heartfelt gratitude to Ms. Krishna Pandey, Assistant Professor, DME Media School, for her constant support. I would like to thank Mr. Sumantra Sadhi Das and Dr. T. Nambora, Assistant Professors, for the excellent technical support. I would also like to thank Shruti Pandey and Shreya Jha, conveners of Spark, for guiding us through. I would like to extend my thanks to all the faculty members for always motivating us and the members of Spark for their efforts. Lastly, I would like to thank all the participants for joining us and for making this event a success. Thank you, everyone. In DME, we believe in engagement and empowerment of students. And since the time this COVID-19 struck in 2020, we intensified this whole process. For the education sector, it was a big challenge. At DME, our small dynamic team decided to take this challenge head on. We organize different kind of programs, different webinars wherein the distinguished people from the industry and other walks of life, they are invited to interact with the students. We try to keep them engaged in taking out newsletter, writing stories, editing stories, and not only that, they make posters, they make cartoons, they write pieces for the newsletter. Mentoring Cell at DME is a very unique feature in the ecosystem of education. While the subject teachers forge the knowledge domain strongly, it is the mentors who reach out to students in difficult times. During pandemic, when our students faced loss of their loved ones,
home isolation, and several other family issues. Mentors ensured that students remain cheerful, lively, and stay connected with us. We have ensured that our students are treated with compassion, warmth, and gentle touch. And it has been our endeavor to treat all the academic activities of our students, which includes PSDA, internal assignment, and various other curricular activities accordingly. Research Cell also pays huge emphasis on interdisciplinary nature of research. In order to promote this, the research centers of the Research Cell were also motivated to join with each other and conduct research activities for students, faculties within DME and outside DME. While the strong academics and great industry connect is building great lawyers, media persons, and managers at DME, we at Mentoring Cell are enabling these future leaders to be compassionate, emotionally strong, and resilient for any times to come. We empower the students. All the schools of DME, they have their students' council. In DME Media School, this council is part. They organize the program themselves, they take their own decisions, and they mobilize the students for all the good cause. Art has the power to unite and connect during the times of crisis. Bringing people together, sharing, soothing and inspiring are powers of art, which have been made empathically obvious by the DME cultural societies during the COVID-19 pandemic. By taking different innovative approaches in organizing various virtual competitions and events in which the students of DME have taken part with great enthusiasm and proved that DMEians are unstoppable. Care with compassion is motto of DME. During Corona period, we were always with our students. Their well-being is primary for us. We take care of our students. We met the expectations of the students, of the parents, and above all of the industry. The placements this year were better than those of the previous years. DME is committed to supporting its students in all possible ways.